آج میں فلپیوں کے خط کے اس دوسرے باب کے اس گیت کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری کوائر نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو رسولوں کا ایمان ہے، جو عقیدے کی شکل میں بعد میں ارلی چرچ نے اس کو ترتیب دیا، اس میں بڑا جو ہے وہ ہمیں واضح طور سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ جو دنیا کی علماء ہیں، دا اسکالرشپ ہے، اور میں ان کی رائے فلپیوں کے خط کے اس پیسج کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اوورwhelming میجورٹی جو ہے دنیا کے اسکالرز کی، بائبل کے علماء کی، وہ اس بات پر ایگری ہے کہ جو فلپینز چیپٹر 2 اور ورسز 6 to 11 ہے، دس از اے پری پولین ہم۔ یہ پالوس سے پہلے سے کلیسیا جو ہے وہ گا رہی تھی، اور ان کا انالیسس کیا ہے، واٹ دے تھنک۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے، and again is the language جو اس میں زبان استعمال ہوئی ہے۔ These are the two criteria جن کو وہ سامنے رکھتے ہیں، the structure and the language، جس سے وہ اس بات کا اندازہ کرتے ہیں اور اپنی رائے کو قائم کرتے ہیں کہ یہ پری پولین ہم ہے۔ اور اگر کلیسیا پالوس کے اس خط سے لکھنے سے پہلے اس ایمان کا اظہار اس گیت کے وسیلے کر رہی تھی، تو what you think? We can say, wow, Lord، کتنا خوبصورت ایمان ہے جس کا وہ اظہار اپنی ہیمنالوجی گیتوں کے وسیلے بھی وہ کر رہے تھے، کہ جو ہے وہ اس گیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع کے بارے میں ان کا ایمان کیا ہے، اس کی شخصیت کو وہ کیا سمجھتے ہیں، who he is، وہ کون ہے۔ اور یہ کویسچن تو ہمیں نظر آتا ہے اناجیل میں بہت دفعہ، جب رسول اس کے شاگرد جو اس کے پیچھے چل رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے کاموں کو، اس کے عجائبات کو، تو وہ حیران ہو کر آپس میں یہ بھی کہتے ہیں، یہ کون ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، who is he؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پری پولین ہم میں کلیسیا اس ایمان کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ مسیح کو کیا سمجھتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this passage shows us it is an evidence کہ یہ کیا ہے، کہ this is the early کرسچنز جو تھے وہ کیا افرم کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے the Christ is pre-existent، اس کی جو اس کی پریزنس ہے وہ ازل سے ہے، وہ پری ایگزسٹنٹ ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ایمان تھا the pre-existence of Christ۔ اور جو ایریس کہہ رہا تھا کہ کبھی کوئی ایسا وقت ہے جب وہ نہیں تھا، there was a time when he was not۔ لیکن ارلی چرچ کیا کہتا، وہ اس ایمان کو بار بار دہرا رہے تھے اس گیت کے وسیلے سے، اور ہر روز یہ گاتے ہیں کہ he is present، وہ ازل سے ہے۔ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو his equality with God، خدا کے ساتھ جو اس کی برابری ہے، جب ہم کل بات کر رہے تھے ہوموسیاس، کہ اس کا ایسنس، اس کا جوہر جو ہے وہ باپ جیسا ہے، ہومو، he is same، not similar، not like، he is same، وہ ہومو ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ he is equal with God، وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ برابر ہے۔ and then وہ یہ بھی بلیو کرتے تھے his full humanity۔ تاریخ میں آپ دیکھیں کلیسیا اس بات پر بہت ہے، کبھی وہ مسیح کی انسانیت پر فوکس کرتے ہوئے اس کی شخصیت کو گڈمڈ کر رہے تھے۔ they were focusing only on the humanity of Jesus، وہ صرف انسان ہے۔ اور اس میں بھی بڑا خطرہ ہے اگر ہم اس میں توازن نہ رکھیں،
If we simply go to the divinity of Jesus, कि वो सिर्फ खुदा है, तो then उसकी incarnation, उसका तजस्सुम कि वो इंसान बनकर दुनिया में आया, फिर हम उसके भी मुनकर हो जाते। तो how we have to keep the balance, और यहाँ पर हम देखते हैं इस गीत में the equality with God and His full humanity, all going together, the balance. Look at the hymn, how they are going together, कि कैसे वो इकट्ठे जो है वो चल रहे हैं। और इसमें जो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं इसको देख रहा था कि हम देखें इसमें कि ये इस गीत का जो एसेंस है, जो इस हेमनोलॉजी में इज द सेंटर पॉइंट, मरकजियत जिसको है, वी हैव टू थिंक अबाउट, वो क्या है? द जीसस इज लॉर्ड, वो खुदावंद है। यीशुस क्रिस्टोस किरियोस, वो किरियोस है, ही इज द लॉर्ड। ये इसका एसेंस है इस गीत के अंदर जब हम चले जाते हैं कि ही इज द लॉर्ड। और वो उस जमाने में ये कहना इतना इजी नहीं था। when the Caesar, the emperor was saying the Caesar is the Lord, how it was easy for Christians to say Jesus is Lord? It's not easy. और शायद मैं और आप तो उसको सिर्फ थोड़ा सा फील कर सकते हैं, because we haven't experienced kind of this thing कि हम कहें, हमें कोई कहे कि ये ना कहो, don't say that Jesus is Lord. लेकिन हमने ऐसा तजुर्बा नहीं किया, जस्ट हम महसूस कर सकते हैं, we just feel it. बट वो हर रोज अपनी जिंदगी में अपने मसीह ईमान का इजहार कर रहे हैं, तो जीसस इज लॉर्ड, कि वो खुदावंद है। और बहुत दफा कल भी ये बात हुई कि रसूलों का अकीदा और ये जो नकाया का अकीदा, ये क्या मानी रखता है हमारी आम जिंदगी के? व्हाट डज इट मीन? क्या इससे फर्क पड़ता है हम ना भी इसको पढ़े? नहीं फर्क पड़ता है। दिस इज व्हाट माई कन्विक्शन इज, माई कायलियत है कि यस, ये हमारे ईमान का इजहार है। और हम ये कहें कि हाँ, अर्ली चर्च फादर्स ने 4वीं सदी में आकर नकाया की काउंसिल में ये क्या हमारे लिए जो है वो चीजें इख्तरा की। इट वॉज नॉट देयर इन्वेंशन माई फ्रेंड्स। वॉज इट देयर इन्वेंशन कि उन्होंने कोई इख्तरा करके ये हमारे लिए जो है वो पैदा कर दिया? यस, कि हम कहेंगे ये अर्ली चर्च फादर्स की इख्तरा है। नो, लुक एट द पैसेज। तो हम कहें कि अच्छा, ये जो एक्यूमेनिकल क्रीड्स हैं, जब हम कल बात कर रहे थे, काउंसिल ऑफ नाइसिया, द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नाइसियन कॉन्स्टेंटिनोपल्टन क्रीड। नो, ये वहां पर फ्रेम तो हुआ, इसको स्ट्रक्चराइज तो किया गया, बट दिस वाज नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट द ऑर्थोडॉक्स चर्च फादर्स बिलीव्ड। It is right from the beginning, the early church, जो रसूलों का ईमान है, वो कैसे जो है वो पास ऑन हो रहा है generation to generation, and they were singing, अपने ईमान का इजहार इस गीत के वसीले से कर रहे हैं। और इसमें पैसेज की तरफ आना चाहता हूं, और यहां पर 5वीं आयत में पौलुस रसूल जो है इसका आगाज इस तरह से करता है। वो कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। इमिटेट क्राइस्ट, बी लाइक क्राइस्ट, फॉलो जीसस। मसीह की तरह जो है वो बनो। क्या कह रहा है? इमिटेट, नॉट ओनली कि हम उसकी कोई नकल की बात हो रही है, इज जस्ट टू फॉलो हिम, जैसे वो चला। Imitate him. And then इस गीत को हम पौलुस रसूल अपने खत में इस्तेमाल करता है। अगर अर्ली चर्चेस को इस्तेमाल कर रहा था, और पॉल भी फिलिपियों की कलीसिया को रोम से बैठकर ये खत लिखता है, तो वो इसको, इस अर्ली हेम को, ये उसकी जिंदगी का, उसके भी ईमान का हिस्सा है, और इसको वो फुली कोट करता है, साइट करता है इन दिस लेटर। और अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है, तो इसमें से हम जो है वो इसको 2 हिस्सों में, आई थिंक इज अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ डिवीजन। मुझे इस पर ज़्यादा
ताकत कहने के ज़रा जोर नहीं लगाना पड़ा कि मैं इसका स्ट्रक्चर जो है इसको जो है वो देखूं, तो हम इसको जो है वो क्या देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। और स्ट्रक्चर जो है वो पहला हिस्सा जो है इज वेरी द स्टेट ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ क्राइस्ट, उसकी पस्ताली की बात जो है वो करता है। और सेकंड पार्ट जो है वो इसका जो है वो हमें बताता है द स्टेट ऑफ ग्लोरिफिकेशन, जीसस की जो है वो हमारे जो है वो सामने आती है, इज एग्जॉल्टेशन। एंड दिस इज हाउ दिस कह सकते हैं कि ये उसके पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये टेक्स्ट खड़ा है, ये उसका ढांचा है। हम जब स्ट्रक्चराइज करते हैं, जैसे अकीदा भी एक हमारे ईमान का स्ट्रक्चर है ना, हम उसको स्ट्रक्चराइज करके देखते हैं। दिस इज व्हाट द अर्ली चर्च बिलीव्ड, हिज ह्यूमिलिएशन, वो क्या था, क्या हमारे लिए बन गया, एंड देन हिज एक्सॉल्टेशन, कि वो जो है वो किस तरह से हम उसकी जो है वो सरफराजी, उसकी स्तुदगी को देखते हैं, हाउ ही एक्सॉल्टेड। And now I want to take you कि हम इसमें डाइव कर जाएं इस टेक्स्ट के अंदर, और रियली हम जब इसके अंदर उतर जाते हैं then we understand who Jesus is, my friends। और फिर हम अपने ईमान को तरोताजा भी जो है वो कर देते हैं। कभी कभी जो थियोलॉजियंस हैं या इल्म इलाही के लोग काम करने, और खास कर थियोलॉजी जब पढ़ते हैं, तो अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं और मसीही आम लोग और स्टूडेंट्स भी कहते हैं, ये थियोलॉजी तो मुझे पागल कर देगी, परेशान कर देगी। बट दिस इज हाउ द वंडरफुल वे कि खुदावंद के बारे में जो अर्ली चर्च का ईमान है, हेमनोलॉजी है, वो अपने ईमान का इजहार हर रोज कर रहे हैं, तरोताजा हो रहे हैं कि हु जीसस इज। और इस टेक्स्ट के अंदर जब हम उतर जाएं तो आप देखें कि छठी आयत का आगाज जो है वो कैसे जो है वो होता है। एक टेक्स्ट वो कहता है, क्या पौलुस कह रहा है, इस हेम को देखें, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। और मैं देखता था कि इसकी क्रिस्टोलॉजी पॉल की क्या है, व्हाट ही थिंक्स अबाउट जीसस, उसकी क्रिस्टोलॉजी क्या, उसका इल्म मसीह क्या है। एंड आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड द सिनॉप्टिक्स, जो हम जिनको मुतफिका अंजीली बयानात कहते हैं, मती, मरकस और लूका, दे आर सिनॉप्टिक्स, वो अट्ठे मसीह को देख रहे हैं। और कल हम इस बात पर देख रहे थे कि जीसस की जब हम ह्यूमैनिटी को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं द क्रिस्टोलॉजी फ्रॉम बिलो, हम नीचे से, जैसे इस रोड को देख रहे हैं, ये रोड नीचे है बट इज गोइंग अप स्लोली 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 इज गोइंग अप। दिस इज व्हाट द सिनॉप्टिक्स आर डूइंग। उनके लिए क्या था, जीसस इज जस्ट अ सिंपल, मे बी वो पहले हो, ये तो एक जस्ट सिंपली इज अ रैबाई, इज अ गुरु, हम इस गुरु के पीछे चल निकले हैं। have no idea कि ये कौन है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन था, ये कौन है। कभी वो उससे घबराते भी थे कि कौन सवाल करेगा, who is going to ask him। और and then we see that कि उसकी जो क्रिस्टोलॉजी है सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स की is growing from below to above। But when we come to the John, the Gospel of John, उसकी जो क्रिस्टोलॉजी है is coming from above। कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। He begins with the heaven, the logos। उसकी थियोलॉजी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कि वही जो कलाम है वही इंसान बन गया, हमारे दरमियान रहने लगा। और शायद कभी लोग उसको पहचानते हुए, मैं सोच रहा था जब वो दरिया यर्दन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, उसने कहा देखो ये खुदा का बरा है, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। कितने लोगों ने नोटिस किया होगा? नोबडी नोटिस्ड, ये कौन है भाई? तो द पॉइंट इज के जो गॉस्पल, जॉन्स गॉस्पल है, वो हमारी जो क्रिस्टोलॉजी है वो क्या है? It begins from above to down।
वो ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ आती है। जैसे हम ऊपर से पहाड़ों में जाएं, कैसे ये चश्मे बहते हुए नीचे की तरफ आते हैं। द क्रिस्टोलॉजी ऑफ जॉन इज लाइक दैट। एंड देन यू सी इट, कि आप देखें कि पौलुस रसूल जब इस हिम के जरिए से क्रिस्टोलॉजी पेश करता है, तो वो भी यही जो है वो पेश करता है कि हिज क्रिस्टोलॉजी इज फ्रॉम अबव, नॉट फ्रॉम बिलो। और वो क्या कहता है कि, और जो उसने टर्म यूज की हैं, देखें जब हम लोग कभी कभी कहते हैं ये क्या जी होमोउसियास, हिपोस्टोसिस, व्हाट दीज टर्म्स आर, ये क्या, ये अर्ली फादर्स ने ग्रीक फिलॉसफी के ऊपर रेसल करते हुए इन टर्म्स को लेकर हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर दी। नहीं, लुक एट व्हाट द टर्म ही यूज्ड, द मॉर्फे। व्हाट इज मॉर्फे? और जब वो कहता है कि एन मॉर्फे थी यू, वो खुदा की सूरत पर था, उसका तर्जुमा उर्दू में सूरत किया गया है। And I was trying to look at in the different English translations, तो आप देखें वहां पर क्या है कि वहां पर n form morphe theou को कैसे किया गया है। being in the form of God, एक ट्रांसलेशन ये कहता है, एक कहता है who being in very nature of God, वो बिल्कुल उसकी जो है वो सूरत में है। और एक ये है the possessor of equality with God, उसमें वो possess किए हुए हैं अपने अंदर, the full deity equality with God. He's a possessor. जैसे हम कहते हैं container is like that, इस तरह की ये टर्म जो है वो हमें मॉर्फे जो है वो हमें बयान करती है। और अगर यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान 30वीं आयत में, मैं और बाप एक हैं, I and Father are one. And then we understand what morphe is. The same, जब उन्होंने कहा homoousios, same, not homoousios, and they, उनके ज़हन में यकीनन ये terms थी कि ये पौलुस क्या कहता है, morphe, being in the form, being in very nature of God, equality with God. और आप देखें कि जॉन की भी हमने रेफरेंस दिया, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब, वो क्या टर्म यूज कर, लोगोस। व्हाट इज लोगोस? सिंपली वर्ड। वो इस ग्रीक टर्म को यूज करते हुए लोगोस, ही इज अ लोगोस है वो, कलाम हमने उसका तर्जुमा किया है। वो कहता है द वर्ड दैट बिकेम फ्लैश, वही कलाम जो है वो क्या बन गया, जिस्म इख्तियार करके इंसान हमारी तरह का इंसान बनकर दुनिया में रहने लगा। वाह, हम इस मोजज़े को, खुदा की इस कुदरत को इस तरह से देखने की हमें जरूरत है कि वो क्या था, क्या बन गया, कहां से आया, उसका ओरिजिन क्या है, वेयर ही कम्स फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम अबव, कि वो आसमानी है, वो अर्शी है, अर्श से आया है, वो फर्शी बन गया, वो ही इज हियर। और जॉन भी उसके लिए टर्म फ्लैश जो है वो यूज करता है। और फिर जब हम काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को देख रहे थे, तो हम कह रहे थे कि एक और टर्म जो है, जो कंस्टेंटिनिया की काउंसिल 381 में हुई, जिसमें जो 3 बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हम कह रहे थे द बेसिल ऑफ सिसरिया, जो कैसरिया का बेसिल है, उसका छोटा भाई द ग्रेगरी ऑफ निसा, उसको हम देख रहे थे। और फिर उसके बाद ग्रेगरी ऑफ नाइसियन, हम कहते हैं दीज आर द कैपेडोशियन फादर्स, उन्होंने मदद की जीसस को उसकी डिविनिटी को अंडरस्टैंड करने को। तो उन्होंने एक वर्ड और यूज किया, हिपोस्टोसिस का वर्ड उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया है। और मैं ये देख रहा था कि ये वही वर्ड है, ये तो इनकी इख्तरा तो नहीं है कैपेडोशियन फादर्स की। लुक एट हीब्रूज चैप्टर 1 and 3, जो अब्रानियों के खत में पहले बाब की 3री आयत में वो क्या कहता है, यहाँ पर वर्ड हिपोस्टोसिस ही है, हमने उसका कहता है वो उसकी जात का नक्श है। वाओ, the way the translators are really juggling with the words, कि वो उसकी जात का नक्श है, इम्प्रिंट, ये बिल्कुल वही वर्ड है हिपोस्टोसिस। चेक कर लीजिए जाके अपना ग्रीक वर्जन। द एग्जैक्ट, यहां पर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है द एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड्स नेचर, हुज इमेज
इम्प्रिंट है वो, और एक कहता है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। सॉरी फॉर दैट, हमें इनके साथ रेसल करना है। लुक दीज द अब्रानियों का मुसन्निफ क्या उसके ज़हन में जीसस के बारे में है, वो उसकी जात का नक्श है, वो उसके जलाल का प्रताव। He thinks about Jesus. Hypostasis, तो हम ये कहते हैं जो hypostasis word जो कैपेडोशियन फादर्स कॉन्स्टेंटिनोपल की काउंसिल में लेकर आ रहे थे, that is not their word, it's a biblical word. ये बाइबल का वर्ड है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। और माय फ्रेंड्स, आर यू विद मी? तो वो उसको जो है वो देख रहे हैं कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, hypostasis। तो अब ये कैपेडोशियन फादर्स क्या कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को शायद लोग चैलेंज करते, उधर आके कहते हु यू आर, कौन हो तुम हमें थियोलॉजी सिखाने वाला? भी यही होता है, नहीं भी आप कौन होते हैं, हम आपको नहीं मानते। But look at who is going to challenge this word. It's not Cappadocian Father's word. It's not yours, my friends. अब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो कहता है कि वो उसकी ज़ात का नक्श है। और फिर रोमियो के ख़त में हम चले जाएं, उसके पहले बाब की 20वीं आयत में, वहाँ पर हमें रोमियो के ख़त में पौलुस रसूल कहता है, खुदा के बारे में वो बयान करते हुए कहता है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत, यहां जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया थियोटेस इस्तेमाल किया है, थियोस आपको पता है, खुदा को ही बयान करते हुए हमने उसका तर्जुमा अलूहियत किया है, डिविनिटी, थियोटेस। और फिर देखें कि यही वर्ड पौलुस ने कुलुसियों के खत के नामे दूसरे बाब की नामी आयत में इस्तेमाल किया। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होती है, फुल डीटी उसमें किस तरह से जो है वो मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अगेन थियोटेस, डिवाइन नेचर, द फुलनेस ऑफ डीटी, नॉट थोड़ा सा, फुलनेस। और मैं हैरान, अगर आप सुलेमान की दुआ को पुराने ड्रामे में देखें, जब उसने हैकल बनाई तो जब वो देखता है, क्या देखता है, हैकल है, शानदार है, बहुत शानदार है, मैग्निफिसेंट हैकल है, लेकिन जो उसकी दुआ है इट्स सो मैग्निफिसेंट। वो कहता है, आए खुदा, तू तो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता है। तो ये हैकल क्या है, व्हाट इज दिस, इसमें तू कैसे समा सकता है? बट लुक एट, वही जो आसमानों के आसमान, वो कहता है द फुल डेटी जो है, अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। थियोटेस माय फ्रेंड, वही इंसान बन गया है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नॉट सिंपली कि हम सिर्फ उसकी इंसानियत पर गौर कर रहे हैं, बल्कि उसकी जो है ये कैसे। इसीलिए बाद में जो चर्च में ये होता है कि हिपोस्टैटिक यूनियन क्या है, कैसे वो खुदा है और कैसे इंसान है, एक में कैसे खुदा की जात और इंसान दोनों जो है मिल जाते हैं। समटाइम इज कंफ्यूजिंग, दुनिया शायद सवाल करे, हम समझा ना पाए, बट दिस इज द फैक्ट। और ये खुदा का एक अजीब इंतज़ाम है कि खुदा जिसके लिए थियोफनीज हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, खुदा मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खुदा जो है वो इंसान हमारे लिए जो है वो बन गया है। The full deity जो है वो हमारे सामने जो है वो उसकी आ रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि the Trinitarian theologians जो early church के थे, वो what they were doing, what the Paul and the apostles and the early church was doing, they were also wrestling with the theology and they were trying to understand Jesus. And yes, और ये इस ग्रीक टर्मिनोलॉजी को जब वो यूज कर रहे थे, मॉर्फे, लोगोस, हाइपोस्टोसिस, थियोटेस, ये सारी जो चीज़ें जब वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको क्या है कि दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हु जीसस इज। और खुदा का शुक्र है कि वो अपने इस ईमान पर कायम और दायम रहे, और यही ईमान पास ऑन होता रहा ना, जनरेशन टू जनरेशन। हमारे पास भी तो ऐसे ही पहुंचा है।
नस्ल दर नस्ल। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, वहां पर क्या है, अगरचे वो खुदा है, वो अर्शी है, लेकिन वहां पर पौलुस कहता है कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा है। और उर्दू का ट्रांसलेशन, व्हाट डज इट मीन, वहां पर एक ट्रांसलेशन कि ही डिड नॉट कंसिडर इक्वालिटी विद गॉड समथिंग टू बी ग्रास्प्ड। मेरी तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जिनकी है वो इसको शायद बेहतर समझ सकते हैं। और एक ट्रांसलेशन कहता है कि समथिंग जो है वो अ थिंग टू बी ग्रास्प्ड या समथिंग टू बी यूज्ड टू हिज ओन एडवांटेज, अपने फायदे के लिए जो है, टू बी यूज्ड फॉर हिज ओन बेनिफिट। पौलुस कह रहा है उसने अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एंड आई थिंक दैट इज द हिंट, ये हमें बताता है, दिस वर्ड द सैटन नोज, वो ये जानता है। इसीलिए अगर आप देखें खुदावंद यीशु मसीह की जो आजमाइश है लूका के इंजीली बयान के 4 बाब में, उसने कहाँ से कहा, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। इनको अपने लिए इस एडवांटेज, तेरे पास है ये एडवांटेज, तेरे पास तो बेनिफिट हो सकता है इनसे, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। तो उन्होंने कहा कि हैकल की कोरे पर भी उसको ले गया, अगर तो खुदा का बेटा, अगेन इफ यू आर, वो उसके जहन में ये डाल रहा है कि इस प्रिविलेज को यूज कर अपने लिए, और तू नीचे गिरा, तेरे बारे में ये लिखा है फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लेकिन खुदावंद ने, और पौलुस कह रहा है कि उसने अपने एडवांटेज के लिए इसको यूज नहीं किया, उसने इब्लीस को भी जो है वो शिकस्त दिया कि नो। और यही पौलुस हमारी मदद करता है कि वो क्या था, क्या हमारे लिए बन गया। और यही बात आप देखें कि इब्लीस ने फिर आखिरी दफा सलीब पर भी यही कुछ किया है। अगर आप लूका के इंजीली बयान के 23वें बाब को देखें तो वहां पर 3 टेम्पटेशंस हैं, द लास्ट 3 टेम्पटेशंस ऑफ जीसस। सबसे पहले क्या, जो रिलीजियस रूलर्स हैं, 23वां बाब 35वीं आयत देखें, वो क्या कह रहे हैं, किसने दूसरों को बचाया है, अपने आप को, लेट हिम सेव हिमसेल्फ। क्यों कह रहे हैं, इफ ही इज गॉड्स मसाया, अगर ये खुदा का मसीह है, अगर ही इज द चोजन वन, अगर ये बरगजीदा है तो बचाए उसको। ये क्यों नहीं इस बेनिफिट को अपने लिए यूज करता, ही कैन यूज, ये कर सकता है। और फिर उसके बाद आप देखें द रोमन सोल्जर्स, 23वां बाब 36 से 38वीं आयत तक, तो क्या है, द रोमन सोल्जर्स जो है वो भी जो है रोमी, वो क्या कह रहे हैं, दे वर लाफिंग, वो कह रहे हैं इफ यू आर द किंग ऑफ ज्यूज, अगर तू यहूदियों का बादशाह है, सेव योरसेल्फ, इसको अपने लिए इस्तेमाल कर। एंड देन द थर्ड वन इज द क्रिमिनल, जो आप देखें रेवोल्यूशनरी गुरिल्ला फोर्स का वो मेंबर एक तरह का है। हम सोचते हैं शायद को बड़े जुर्म शर्म किए गए, तो उनके लिए तो वो रोमियों के लिए तो वो था, लेकिन ही इज सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो वो क्या कह रहा है, वो भी इसमें है, कहता है आर यू नॉट द मसाया, क्या तू मसीह नहीं है, सेव अस एंड सेव योरसेल्फ, हमें भी बचाओ और अपने इस प्रेरोगेटिव को, इसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर, बट ही इज नॉट यूजिंग इट। लेकिन उसने जो है वो क्या किया है, 7वीं आयत में पौलुस रसूल जो है वो इसको कहा कि अगरचे वो ये था, लेकिन वो क्या है, अपने आप को जो है वो खाली कर दिया है। He made himself nothing। इसको ग्रीक के अंदर अक्सर आप थियोलॉजियन देखेंगे केनोसिस पैसेज, जिसको जो है वो कहा जाता है, इट्स अ केनोसिस पैसेज। तो ये क्या है, जिसमें वो अपने आप को एम्प्टी कर देता है। सम ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं he emptied himself, उसने अपने आप को जो है वो खाली कर दिया है। He gave up his status, हम कहते हैं he gave up his glory, एक तरफ जो है वो। तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद ये नहीं है कि he gave up part of his deity in coming to earth, नहीं, वो उसके साथ है। It means that he, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है, he relinquished the glory that he had with God, he laid down his glory, इसको एक साइड पर रखता है इस पर। और यही उसको बार बार सडन में क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है कि यूज इट, योर ग्लोरी। तो ये है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि वो क्या है, he is taking the very nature
of a servant, خالی کر دیتا ہے لیکن وہ کیا جو ہے وہ بن گیا ہے. اردو میں ہم کی ورڈ لکھا ہے خادم، وہ بن گیا. اگر آپ اسی خط کے شروع میں آ جائیں، یہی لفظ اس نے استعمال کیا اور وہاں پر ہم نے کیا مسیح کے بندوں، ڈولاس، ڈولوئے ورڈ استعمال، یہی یہاں پر ہے. وہ ڈولاس بن گیا. ہمارے لیے یہ ورڈ شاید اتنے معنی نہیں ہے. لک ایٹ ان دا کانٹیکسٹ، ان دیٹ کانٹیکسٹ جہاں وہ استعمال ہوا ہے، کیا ہے؟ وہ غلام بن گیا، جہاں پر غلام کی وہ حیثیت ہے کہ اس اگر وہ قتل بھی ہو جائے تو نو انویسٹیگیشن. اتنی مینیل حالت میں، اور پالوس اس ورڈ کو یوز کر رہا ہے کہ ہی از دا لارڈ اینڈ ہی بیکیم دا ڈولاس. وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا بن گیا ہے. The context is کہ it's a very low position. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اسٹوئک فلاسفر ہے ایپیکٹیٹس، کچھ لوگ اس کو ایپیکٹیٹس بھی کہتے ہیں. I don't know what the real pronunciation is. The stoic philosopher Epictetus جو ہے وہ کہتا ہے کہ is used to refer to weakness of character. شاید یہ کیریکٹر کی ایک ویکنس ہے. دس از ناٹ دا پازیٹیو وے. لیکن پالوس رسول اور خاص کر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اٹ کیریز اے پازیٹیو سینس، اٹ کیریز اے پازیٹیو ٹون کہ نہیں، اٹ ریفرز اے سیکریفیشل ولنگنیس ٹو گیو اپ ونز رائٹس فار دا گڈ آف ادرس. دوسروں کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ سب کچھ اپنے آپ کو دے دینا. کیا بن گیا ہمارے لیے. اور کوئکلی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، تو آئی وانٹ ٹو جسٹ ٹو ہائی لائٹ اٹ کہ وہ کیا تھا، کیا ہمارے لیے جو ہے وہ بن گیا. اس کا سفر دیکھیں کہ وہ خدا تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خالی کر کے کیا انسان جب بنتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ وہ خادم بن گیا. خادم بھی کیسا بنا؟ فرمانبردار خادم. اور فرمانبرداری کی انتہا ہے، وہ کہتا موت، بلکہ صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کیا. لک ایٹ ہز ٹریول، کہ اس کی جو کرسٹولوجی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا تھا اور کیا وہ ہمارے لیے بن گیا ہے. کمنگ ڈاؤن، کمنگ ڈاؤن، ڈاؤن اینڈ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. لیکن وہ یہاں پر نہیں جو ہے وہ رکا ہے. جلدی سے میں دوسرے دا اسٹیٹ آف ایگزالٹیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ وہ کیا ہمارے لیے بن گیا. لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ یہاں سے دیکھیں کہ ٹون کیسے جو ہے. God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا ہے اور اسے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور بہت دفعہ اسکالرس بھی اس پہ ریسل کر رہے ہیں. Which name? He's talking about Jesus. یسوع کے نام کے اور بھی لوگ تھے اس وقت. Is the Christ is the name? لیکن زیادہ اس پر ایگری کرتے ہیں کہ جو نام جہاں پر ہے، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، دیٹ از دا کیریوس، دا لارڈ از دا نیم، جس کے سامنے سب جو ہے وہ جھک جائیں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی جو ہے وہ کیا کیریوس. اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہودیوں کے لیے انہوں نے جب سیپٹوجنٹ کیا، عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا، تو وہ یاوے تو لکھتے نہیں تھے، لیکن اس کی ریپلیسمنٹ کیا تھی ان کے پاس. دس از دا ورڈ کیریوس. اینڈ اف از دا ریپلیسمنٹ آف یاوے ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور نیو ٹیسٹمنٹ کے جو یہودی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کو جیزس کے لیے استعمال، ہی از دا کیریوس. تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟ دا یاوے از ہیئر، وہ خداوند ہے. اور پھر اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ ہر ایک گھٹنا، ایوری نی، ہر ایک زبان، ایوری ٹنگ کیا کرے گی جو ہے وہ اقرار کرے گی. ہر گھٹنا اس کے سامنے جھک جائے گا. تو یہاں پر وہ کیا اقرار کیا ہے؟ اٹ از دا یونیورسل لارڈشپ آف کرائسٹ. اٹس ناٹ سمپلی ون. اگر آپ دیکھیں تو کیا کہتا ہے؟ آسمانیوں کا، ہیون، زمین، اور زمین کے نیچے کون رہ گیا ہے پیچھے؟ ایوری ون. ہیون، ارتھ اینڈ انڈر دی ارتھ، سب جو ہے وہ اقرار کریں گے، سب کو سامنے اس کے جو ہے وہ جھکیں گے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں دا یونیورسل لارڈشپ آف کرائسٹ. وہ ہی از ناٹ اونلی دا لارڈ آف دی ارتھ، ہی از دی لارڈ
ऑफ क्रिएशन, सारी कायनात का वो मालिक और खालिक है, एंड ही इज द लॉर्ड। और हर जुबान जो उसकी वो इकरार करेगी कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है। और लगता है दिस इज द एको ऑफ यशाया चैप्टर 45। अब यहाँ पर यशाया में हम इसको देखते हैं कि खुदा ये फरमा रहा है, दिस इज द एको ऑफ द यावे सेइंग, हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा। यशाया 45:23 देखें, यशाया क्या कहता है कि खुदा ये कह रहा है हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा। दिस इज द यावे इज सेइंग, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी, मेरे सामने झुकेगी। दिस इज व्हाट द यावे यहोवा खुदा फरमा रहा है। द सेम एको वी फाइंड हियर। वो क्या कहता है, हर एक घुटना, खा आसमानियों का, खा जमीन पर रहने वालों का और जमीन के नीचे हैं, सब उसके सामने झुक जाएंगे। द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन माय फ्रेंड्स। और इसलिए आप देखें कि जब वो उसको जिस अकीदे में जब वो उसको पेश कर रहे थे, तो वो भी जो है वो क्या कह रहे थे कि वो खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, और उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीज़ें जो हैं वो बनी हैं। ही इज़ द माइटी, ही इज़ द क्रिएशन, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। वो जो है वो सारी कायनात का जो है वो खालिक और मालिक, सारी कायनात उसके सामने जो है वो झुक जाएगी, हर एक घुटना, हर एक जुबान जो है वो इकरार करेगी। और हम देखते हैं कि ये शायद मेरे और आपके लिए देवर ज्यूस, सिर्फ एक ही तो बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस का राइटर है हम जिसको हम लूक समझते हैं कि दैट इज ही केम्स फ्रॉम द जेंटाइल बैकग्राउंड, द रेस्ट ऑफ वर द ज्यूस। तो वो तो ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत जानते थे, जानते समझते थे, और वो उसको देख रहे हैं कि उसकी रोशनी में, जिसको हम कहते हैं द बिब्लिकल थियोलॉजी, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड जीसस देन ऑलवेज टू अंडरस्टैंड थ्रू द लेंस ऑफ जीसस ओल्ड टेस्टामेंट को हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और जीसस इज द सेंटर। अगर हम इसीलिए कहते हैं द मिसोलॉजिकल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, और हम उसमें देख रहे हैं कि वो क्या है। और इसको एक तरह की हम कह सकते हैं यूनिवर्सल जो उसकी वर्शिप है वो हो रही है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया है, वहां पर लिखा है शागिर्दों ने उसको झुककर सिजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया whether he is a God or not। और फिर हम इसको देखते हैं मुकाशवा की किताब के 5वें बाब में आ जाएं तो आप देखें कि जब यूहन्ना रसूल को वो रोया दिखाई गई है, रेवलेशन चैप्टर 5, और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 सर्कल्स जो हैं वो वहाँ पर नजर आते हैं। पहला जो सर्कल है वो हम देख रहे हैं कि 9वीं आयत में जो है वो मिला है, वो एक नया गीत गाने लगे। व्हाट दे वर डूइंग, दिस इज अ न्यू हिम दे स्टार्टेड सिंगिंग। वो क्या गा रहे हैं, उन्होंने कहा तू ही इस किताब को लेने, इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को जो है वो खरीद लिया है। और वहाँ पर आगे हम देखते हैं कि 10वीं और 11वीं आयत में क्या है, The 4 creatures and the 25 elders, वो 4 जानदार और बुजुर्ग क्या किया, they just bow down before the lamb। और यहाँ लैम्ब जो मसीह की है कि ये ज़िबा किया हुआ बरा है लेकिन खड़ा है, हम इसको कहते हैं the slain and resurrected lamb। Jesus की death and his resurrection are together here। ज़िबा करते हैं, किसी को खड़ा रह सकता है? What the imagery is कि ये ज़िबा किया हुआ बरा जो है वो खड़ा है। चारों जानदार और लोग इसके बारे में, ये कौन है? Maybe we don't know। डॉन कॉर्सन को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा कि व्हाट हिज व्यू, थिंक ही इज जो एंजेलिक हायरार्की है, शायद ये वो उसका हिस्सा है, ये 4 जानदार और ये 24 बुजुर्ग। समटाइम्स पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, मे बी वी डोंट नो, लेकिन आसमान को रिप्रेजेंट करते हुए व्हाट दे आर डूइंग, उसके सामने झुक गए। वो गीत क्या गा रहे हैं?
This is the first circle and then come to the next circle. और वहाँ पर आप देखें कि 11वीं आयत में क्या है, फिर बुजुर्गों के गिरदा के बहुत से फरिश्तों की आवाज़ को मैंने जो है वो सुना. वो कहता मैं शुमार नहीं कर सकता, लाखों हैं, करोड़ों हैं. They are the angels. आसमान पर क्या हो रहा है, वो भी गीत गा रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं, बुलंद आवाज़ से कहते हैं, ज़िबा किया हुआ बराही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हम्द के लायक है. आसमान पर क्या शिरक हो रहा है? This is what John is a Jew and he is saying the angels are worshiping Jesus. And then जो third circle है, आगे आकर आप देख लें कि 13वीं आयत में क्या है. उसके बाद वो कहता है कि ये फर्स्ट सर्कल हम देख रहे हैं, 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, then the angels they are in millions और लाखों और करोड़ों, शायद वो गिने नहीं जा सकते. then the third number क्या है, we see it. वो कहता है फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बड़े की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत जो है वो अब्दुलाबाद होती रहे. और सब ने, जानदारों और बुजुर्गों ने कहा आमीन आमीन, और उन्होंने इसको गिर कर सजदा किया. The whole creation is bowed down before the Lord. He is the creation. He is the Lord of all creation. So my friends, जिस नुक्ते की तरफ मैं अपने सरमन को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ, इस बाइबल स्टडी को, कि वो क्या है, वो क्या बन गया हमारे लिए. तो पौलुस इस एग्जाम्पल को देखता है कि स्टेट ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ क्राइस्ट एंड देन द एक्सॉल्टेशन ऑफ क्राइस्ट, और फिर वो कहता है इमिटेट इट, इसको फॉलो करो, जैसा मिजाज मसीह यीशु का भी है वैसा रखो. व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस एंड इट्स अ चैलेंज फॉर अस एज ए लीडर्स. और अगर आप इसका जो है वो ग्रामेटिकल एनालिसिस इस टेक्स्ट का करके देख लें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जब हम देखते हैं कि 6 आयत से लेकर 8वीं आयत तक क्या है, जिसको हम अंग्रेज़ी में एक्टिव वॉइस कहते हैं. हमने तो ग्रामर से अंग्रेज़ी सीखी है ना, हमारी कोई असली फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है. तो हम कहते हैं जी एक्टिव वॉइस क्या है, जिसमें सब्जेक्ट जो फाइल है वो एक्टिव होता है, वो डूअर बनता है, वो काम करता है, फाइल कर रहा है. तो यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जहाँ पर वो क्या है, उसने खुदा के बराबर होने को रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, वो खुद खादम बन गया, इंसानों के मुशाबे हो गया, पस्त कर दिया, फरमाबरदार रहा, मौत बल्कि इसलिए. ही इज़ एक्टिव, ही इज़ डूइंग, गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एक्टिव है. लेकिन आप देखें जो ही हम 8वीं आयत से 9वीं आयत के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, इट्स अ फ्लो फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस की तरफ मूव करते हैं. वहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, और वहाँ पर क्या है, इसी वास्ते खुदा ने, वो खुद नहीं अपने आप को सरबुलंद कर रहा, द गॉड द फादर जो है वो उसको सरबुलंद कर रहा है. ही इज़ अ पैसिव हो गया है. माय फ्रेंड्स, जहाँ पर स्तुति है, इज्जत है, हम एक्टिव ही रहते हैं. जहाँ पर जो है हलीमी और फ्रोतनी है, अगर हम जीसस की एग्जाम्पल को ले लें, सारे ही चर्च के मसाइल हल हो जाएंगे. जो कुछ हो रहा है आज पाकिस्तान के, हम रो रहे हैं, what is happening, it's all, we all are the part of that. हम किसी को तनकीद नहीं कर सकते. What is happening in the church? Look at what Jesus is saying, कि वो क्या है, जहाँ पर स्तुति है, जलाल है, हशमत है, वहाँ पर वो पैसिव है. जहाँ पर हलीमी फ्रोतनी नीचे होने के, ही इज एक्टिव. वो कहता है इसको फॉलो करो, दिस इज योर एग्जाम्पल. हम क्या कर रहे हैं? कभी कभी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या कहते हैं जी, आप जो कैरेक्टर है, वर्च्यू है, दैट इज द पार्ट ऑफ द थियोलॉजिकल. इसको कहते हैं नल करिकुला, टेक्निकल टर्म्स में जो थियोलॉजिकल एजुकेशन में लोग काम करने वाले हैं. ये पढ़ाया नहीं जाता, इसका कुछ सिलेबस नहीं बनाया जाता, इसका कोई कोर्स वर्क नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट किए जाते कि इसके जी वो ऑब्जेक्टिव्स बनाएं जी, ठीक है, कॉग्निटिव कितने हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव कितने हैं, और ये सारा कुछ ही लोग हम करते रहते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स? हम कहते हैं इसके बगैर ना पढ़ाएं. Whatever is that, the null curricula is, ये पढ़ाया नहीं जाता, ये सिर्फ
प्रैक्टिस किया जाता है। हलीमी और फ्रोत नहीं, और ये जो लीडर्स हैं, जो हमारे थियोलॉजिकल एजुकेटर्स हैं, व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग विद इन द इंस्टीट्यूशन, जो कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अस वेयर वी स्टैंड, हम उनको क्या दे रहे हैं। एंड लुक एट द एग्जाम्पल। और जब मैं यूके में पढ़ रहा था तो हमारे साथ इंग्लिश फ्रेंड्स भी थे, तो हमारी ग्रीक की क्लास हो रही, तो टीचर ने कहा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो मुझे पूछने लगे ये क्या है, तो मैंने कहा दिस इज योर लैंग्वेज। तो मैंने कहा आपको, कहते हमने इस तरह से नहीं, हमें पता है कि फ्लो है अंग्रेजी, लेकिन हमने इस तरह से अंग्रेजी नहीं सीखी, हम तो सुनने से सीखते हैं बचपन से, योर लैंग्वेज। मे बी हम भी कहें ये क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव, बट जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल माय फ्रेंड्स, कि जीसस ने हमें जो है वो क्या है, जब वो हलीम है, फ्रोतन है, तो वो क्या है, ही इज़ एक्टिव। लेकिन जहाँ पर सरबुलंदी है, स्तुदगी है, ही इज़ पैसिव, ही इज़ द लॉर्ड। एंड दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग, कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी है।